Sexual reproduction in flowering plants. In this chapter, two topics are covered. The first is flower, second is pre-fertilization structure and events. इसमें से एक सब टॉपिक कवर किया गया है इस वीडियो में, stamens, microsporangium, microsporogenesis and pollen grains. The first topic is the flower, a fascinating organ of angiosperms. In the plant classification, we will find angiosperm as a top kingdom. इस kingdom में most evolved plants are present. Almost all the plants, they are reproducing by the sexual reproduction. So if I will see what is a flower, so to a biologist, the flowers are morphological and embryological marvels and the site for the sexual reproduction. So जब हम flower को embryological means study of the embryo और external characteristics पे study करते हैं, तो वहां पर हमें पता लगता है कि दिस इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ वी विल सी अ फ्लावर, फ्लावर हमेशा एक स्टॉक पर होता है, दैट द स्टॉक इज नोन एज द पेडिसल. दिस पेडिसल इज ब्रॉडन एट द बेस एंड दैट वी जस्ट कॉल इट एज अ थैलेमस. अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूं कि दिस इज अ पेडिसल and this pedicel is always joined with the help of the stem, and this pedicel is broadened at the base. और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये इसका रिसेप्टिकल या थैलेमस कहलाता है. So all the four whorls or the parts of the flower, they are found on the receptacle. The innermost whorl which is present on the receptacle, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो गाइनीशियम होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं. द थर्ड वर्ल जो कि गाइनीशियम के साथ होता है, जिसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं. समटाइम्स वी जस्ट कॉल इट एज अ 2 पार्ट्स, और नंबर इसका वेरी करता है. नंबर तो गाइनीशियम में भी जो पिस्टिल होता है उसका भी वेरी करता है. दिस इज द एंड्रोशियम. जो थर्ड वर्ल होगा, ये दिस इज द थर्ड वर्ल. जो सेकंड वर्ल होता है, दैट वी जस्ट कॉल इट एज अ कॉरेला, जो कि हम पेटल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं. और द लास्ट वर्ल we just call it as a calyx. So flower has 4 whorls which are present on the thalamus. What is the thalamus or receptacle? That is the broadened part of the pedicel. We will just find out the gynoecium, the innermost part of the flower. The structural and functional unit of gynoecium, we call it as a pistil or carpel, which is made up of 3 parts: style, stigma and ovary. That is the endoecium. Endoecium, the structural and functional unit of endoecium is stamen. Stamen has also 3 parts. The one is filament, another one is the connective, and the third one is the anther lobe. Then the second word, that is the corolla, which consists of many petals which are colorful, which help in the process of the pollination. And the first word, which is the calyx, that is made up of the sepals which protect the flower in bud condition. So that is explained in both of the diagrams. Here we just find out the innermost whorl is the gynoecium. The innermost whorl is the gynoecium. The third whorl is the endoecium. The second whorl is the corolla, and the first whorl is a calyx. And what the parts we have just told, the stalk of the flower is known as the pedicel, which broadens. The outermost whorl is calyx. The second whorl is corolla, made up of petals. The third whorl is endoecium, that is anther and filament. And fourth whorl is gynoecium, that is made up of stigma, style and ovary. So the same thing is again given, because this is the diagram which is given in NCERT. They have also given this diagram, and there they have shown the longitudinal section of flower. जब हम longitudinal section of flower से flower को study करते हैं, then only we just find out this was the pedicel जो broaden होकर receptacle या thalamus बनाता है. outermost whorl जो यहाँ पर है, वो sepals है. sepals किसका structural and functional unit है? calyx का. तो whorl is calyx, the structural and functional unit is sepals. The second whorl where the petals are given, the whorl is corolla and structural and functional unit is petals. The third whorl is endoecium.
the structural and functional unit is the stamens, and stamens में जो labeling यहाँ पर हुई है वो filament की हुई है और anther की हुई है. So anther is one part. Anther और filament जहाँ पे connect होते हैं, that part is known as the connective. So that has also three parts, that is filament, connective as well as the anther lobe. And the fourth part we just call it as a gynoecium. इसको हम जो एक यूनिट यहाँ पे दिखाया है इसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, और कार्पल या पिस्टिल का जो लोअर पोर्शन है, स्वॉलन पोर्शन, ये ओव्यूल कहलाता है, सॉरी ओवरी कहलाता है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एंड द ओवरी लेबलिंग इज गिवन हियर, एंड देन दिस इज द लॉन्ग tube which we just call it as a style, and the broadened part of the style which receives the pollen grain during the pollination, we call it as a stigma. So here the name of the four whorls are mentioned: calyx, corolla, androecium and gynoecium, and the four structural and functional unit we just call them as a sepals, petals, stamens or the pistil. When we just come to the NCERT book, there are some questions given there, and the answers are mentioned in this slide. They have just asked you that at least 5 flowers you have to name which are ornamental value. They are commonly cultivated at homes and a garden, and that is the list. Many more you can add. Find out the name of the 5 flowers which are used in social and cultural celebration. That is a list. You can add many more. Have you heard about the floriculture? Yes, this is the study and practice of growing, marketing and arranging flowers and ornamental plants for various purposes. And the fourth question was asked in NCERT book. Can you name the two parts of the flower in which the two most of the sexual reproduction develop? So first one is the एंड्रोशियम, यहाँ पे स्टेमन इसका पार्ट है, और दूसरा पार्ट है इसका गाइनीशियम जिसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पिस्टिल. सो मेनी टाइम्स यू विल फाइंड आउट these questions also in your exam. This is a part I have just copied from your NCERT biology class 12, and the second topic is started here, and that is the pre-fertilization structure and events. First I read these points, what you can just find out from your NCERT. Much before the actual flower is seen on a plant, flower is the organ of the plant. There are two systems in plant. One is the root system which made up of root, and another is the shoot system which is made up of stem, leaves and flower. So much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. So after a certain time, after the maturity of the plant, then only this flower comes on a plant. Several hormonal and structural changes are initiated before the flower comes on the shoot apex or the shoot of the plant, which lead to the differentiation and further development of floral primordium. So floral primordium and primordium, these are the two terminology, you should know that. In a flower, the male and female reproductive structures, androecium and gynoecium, differentiate and develop. It means because we are studying the sexual reproduction of the flower, so जो changes होंगे वो androecium में हो रहे हैं, it means stamens में हो रहे हैं जहाँ पे pollen grain बनेगा, gynoecium में हो रहे हैं जहाँ पर egg cell बनेगा, because these are the two gametes which are required for the sexual reproduction. So flower में male and female reproductive structures, thus androecium and gynoecium, differentiate and develop. Androecium consists of the whorl of stamens and gynoecium represent the pistil or carpel. So now it is the this is the question, what is primordium and what is the flower, that is floral primordium. If we come to the primordia, primordia word means an organ in its earliest morphological stage of development. एक छोटा सा organ जो develop होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए,
क्योंकि शूट मेरिस्टेमेटिक, शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वहां पर प्राइमोडियम, क्योंकि यहां पर ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है जहां पे डिफरेंशिएशन होता है, एंड देन ओनली द फ्लावर इज कमिंग आउट, मतलब फ्लावर की प्रिपरेशन स्टार्ट होता है. एंड व्हाट इज द फ्लोरल प्राइमोडियम? इट डेवलप्स इनटू व्हर्ल्स ऑफ द फ्लावर. जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम है, ये चारों के चारों जो वर्ल्स है ये फ्लोरल प्राइमोडियम से ही डेवलप होते हैं. इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? The arrangement of the flowers on the plants. So if you just find out, several hormonal and structural changes are initiated before the flowers seen in a plant that leads to differentiation and further development on the floral primordium. So in this diagram you will just find out the leaves have come out on the stem, and that is the shoot apex. Here the vegetative shoot apical meristematic tissues are present. You are well aware कि meristematic tissues में ही cell division होता है. जब वो permanent हो जाते हैं तो cell division cease हो जाता है. जो लीफ प्राइमोडियम है उससे लीफ निकलेगा, बट जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है प्लांट की आफ्टर द मैच्योरेशन, तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, you will just find out the two labelings are given. The one is inflorescence meristematic tissues, another one is the floral meristematic tissues. जो भी इनिशिएशन होता है यहाँ पर इस पोर्शन से स्टार्ट होता है. Floral primordium, as I've told you in the earlier slide, that will give rise to the four whorls of the flower. इसमें टिश्यू में चेंजेस होते हैं, इनमें चेंजेस में सेल डिवीजन होता है. अगर फ्लावर में ग्रुप ऑफ फ्लावर्स में आ रहा है तो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है. मीन्स द फ्लावर्स इन दिस डायग्राम इट इज अरेंज हियर, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस शो किया हुआ है. फ्लोरल एक्सिस पर ये फ्लावर्स अरेंज्ड हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है. रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में the older flowers are at the base and younger flowers are present at the tip. तो यहाँ पर अगर solitary flower है तो single flower होता है. तो जब बड कंडीशन में आने से पहले जब वो ब्लूम करता है फ्लावर, उससे पहले जितने भी प्रिपरेशन होता है वो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. कहाँ पर होते हैं? शूट मेरिस्टम में होते हैं. यहाँ पर चेंजेस होते जाते हैं. वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज बनता है, and inflorescence meristematic tissues and floral meristem tissues बनता है, and then only the bud is formed, and that is explained in the next slide. So here that is only for your explanation कि ये आपने शूट एपेक्स 11th क्लास में हमने इसको पढ़ा था. वेजिटेटिव शूट टिप है यहाँ पे इनिशिएशन होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. यहाँ पर सेपल प्राइमोडियम इनिशिएट होता है. सेपल आउटर मोस्ट वर्ल्ड है आपका कैलिक्स, फिर पेटल होता है, सेकेंड वर्ल्ड है आपका फ्लावर का कोरोला, देन स्टेमेंस थर्ड वर्ल्ड है एंड्रोशियम, कार्पल फोर्थ वर्ल्ड है आपका गाइनीशियम. सो चेंजेस आते हैं एंड जस्ट यू फाइंड आउट इन अ बड, जो मैच्योर बड आता है, क्योंकि फ्लावर पहले ब्लूम नहीं होता, पहले प्लांट पे बड आता है. जब ये मैच्योर बड आ जाता है उसमें all the whorls of the flower, that is the calyx, corolla, androecium and gynoecium already यहाँ पर present होते हैं. So the flower में जब initiate होता है, bud condition में होता है, तो primordium changes कहाँ पर होते हैं? Floral primordium में shoot apex पर होते हैं. As I told you, there are 3 parts on the shoot. Plant के shoot के 3 parts हैं आपके shoot system में, that is stem, leaves and flower. So floral primordium से आपके all the parts they are initiated. The next part of this chapter, that is stamen, microsporangium and pollen grain, and the fourth part is microsporogenesis. So first we come to the stamens. Stamen is a structural and functional unit of androecium. एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ मैनी स्टेमन्स, और स्टेमन्स के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. इफ आई विल ड्रॉ द डायग्राम हियर, द फर्स्ट पार्ट इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल इट एज अ फिलामेंट. दिस इज द फिलामेंट, and this is a connective which connects
the 2 anther lobes. So third part is your anther lobe. 2 anther lobe होते हैं यहाँ पर. This is the one anther lobe, this is the another anther lobe. एंड ये वाला जो पोर्शन होता है जो कनेक्ट करता है फिलामेंट को एंथर लोब से, वो कनेक्टिव कहलाता है. एंथर लोब दो तरह से कनेक्ट होते हैं फिलामेंट से. ये वाला जो कनेक्शन है ये बेसी फिक्स्ड कहलाता है, ये बेस से फिक्स्ड है. बट ये जो डायग्राम में शो किया गया है ये डॉर्सी फिक्स्ड है. अगर आई हैव टू ड्रॉ द डॉर्सी फिक्स्ड हियर, देन आई विल ड्रॉ द एंथर लोब्स लाइक दिस. मैं एंथर लोब्स को ऐसे ड्रॉ करूंगी. दिस इज जस्ट अ रफ स्केच, और इसको मैं डॉर्सल साइड से इसको अटैच करूंगी. दिस इज द डॉर्सी फिक्स्ड, कनेक्टिव से ही अटैच्ड होगा, एंड दिस इज द बेसी फिक्स्ड. सो बेसी फिक्स्ड एंड डॉर्सी फिक्स्ड, these are the positions how the anther lobe is present here. So if we will find out the 4 whorls of the flower, the first 2 whorls, calyx and corolla, they are non-essential whorls for the process of the sexual reproduction. क्योंकि एक फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है और दूसरा पॉलिनेशन में हेल्प करता है. बट यहाँ पर हम 2 गैमीट्स की बात करेंगे. सो फर्स्ट मेल गैमीट की अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन है. पॉलन ग्रेन जो होता है वो एंथर लोब्स में बनता है. द pollen grains are formed in the anther lobes, and that is the first gamete we are talking about. So process of the formation, genesis का मतलब होता है process, and microspore is the name given for the pollen grain. Small, micro का मतलब होता है small spores. So microsporogenesis is a process जब pollen grains बनते हैं. Megasporogenesis जब हमारा egg cell बनता है तो megasporogenesis कहलाता है. So there are 2 parts of the typical stamen. One is the long slender stalk, that is known as filament, and another one is the anther. Now the proximal end of the filament, ये इसका proximal end है. This is the proximal end, जहां पर कर्सर है हाईलाइट, ये वाला इसका proximal end है, जहां पर ये लेजर शो कर रहा है. ये थैलेमस से कनेक्टेड रहता है. थैलेमस क्या है? broaden end of the pedicel, उससे connected रहता है. It is attached to the thalamus or the petals of the flower. Sometimes this portion is attached to the petals of the flower. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब हमने फ्लावर को morphology of the flower पढ़ा था कि either it is attached with the thalamus or it is attached with the petals of the flower. So ये इसका कौन सा end है? Proximal end है. The number and the length of the stamens that is variable in the flowers in the different species. ये जो लेंथ होती है स्टेमेंस की ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है. A typical angiosperm anther is bilobed. यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी 2 lobes को शो किया हुआ है, यहाँ पर भी 2 lobes को शो कर रहे हैं. Lobes का मतलब है this is one lobe, this is the another lobe, and the each lobe has the 2 theca, that is the diathecus. बट अगर हम इसको कट करते हैं, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इट, तो यहाँ पर हमें पता लगेगा ये एक लोब था और ये दूसरा लोब था. इन 2 लोब्स में से देयर आर 2 थीकास. थीका मतलब 2 उसमें पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं जिसको हम कहेंगे. एक एंथर लोब में 2 चैम्बर्स हैं. सो 2 एंथर लोब्स में कितने हो जाएंगे? 4 चैम्बर्स हो जाएंगे. सो ऑफर अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स lengthwise separating the theca. यहां पर अगर आप ये देखो तो they are separated. यहां पर क्या है? a groove. groove का मतलब होता है जैसे स्लिट होता है, जैसे दरार टाइप का होता है, वो थीका के बीच में यहां पर रन करता है. तो what are the stamens? They are the structural and functional unit of the androecium, and इसका जो proximal end होता है वो thalamus से connected है. जो उसका ऊपर वाला एंड होता है, जो अपर एंड होता है वहां पे एंथर लोब्स है. देयर आर 2 एंथर लोब्स एंड देयर आर 2 थीका इन ईच एंथर लोब. सो दे आर diathecus and there is a groove which runs along the theca. Collect the stamen, that was mentioned in NCERT, and sometimes you should know that when they are have asked you कि ये क्या है यहाँ पर और कैसे कैसे डिफरेंट लेंथ के होते हैं यहाँ पर स्टेमन्स. So collect the stamens in each of the 10 flowers and you will arrange them on a slide
and then you will see what is the nature of that. अब इसको मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगाया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि देयर आर द डिफरेंट लेंथ्स ऑफ दी, यहाँ पर इन्होंने मेजरमेंट किया हुआ था कि एंथर का कितना कितना लेंथ होता है, क्या पोजीशंस होती हैं यहाँ पर, वो इस तरह से इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो आप जितने भी प्लांट्स के फ्लावर्स उठाएंगे उसमें आपको डिफरेंट लेंथ्स के एंथर्स मिलेंगे। Then when you just see the anther under the that is microscope, यहाँ पर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज नहीं करते, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं प्रैक्टिकल में। then you will find out this type of structure and that will be the anther lobe। यहाँ पर आपको इस तरह का देखिए, यहाँ का जो स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये डॉसी फिक्स्ड है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फिक्स कर रहा है बेसी फिक्स्ड है, ये आपके एंथर लोब्स है और दिस इज द फिलामेंट और दोनों यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, हम इसको कट नहीं करेंगे, ना ये ट्रांसफर सेक्शन है ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, हमने कंप्लीट स्टेमेंस को डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है एंड देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, योर टीचर कैन शो दैट and you can observe that. Now we have to see that what is present in the anthers। एंथर लोब का स्ट्रक्चर में ग्रूव कैसा होता है, टू थीकास कैसे होते हैं एंड हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर है जहां पे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। सो एंथर लोब्स को कई बार हम लोग पॉलन सैक भी कहेंगे। दैट इज जो थीका जो हमारा ये एंथर लोब्स है, द लेबलिंग इज गिवन एज अ एंथर लोब हियर। यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा दिस इज वन थीका, दिस इज द सेकंड थीका, देयर आर टू थीकास इन वन एंथर लोब, दिस इज द वन थीका अनदर थीका एंड दो इसमें, तो देयर आर फोर थीकास। एंड हियर इफ यू जस्ट फाइंड आउट कि यहाँ पे अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। सो इसके बाहर कितनी वॉल्स है, कितनी वॉल्स इसको सराउंड करती है, इस ग्रूव का क्या फंक्शन है, that is mentioned here। So when you just see here a bilobe nature of the anther, that is very distinct in the transverse section of anther। transverse section को कैसे कट करते हैं, suppose this is a anther, अगर आपका ये एंथर है तो हम इसको ऊपर से कट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप कैसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं। तो जब हम इस तरह से कट करते हैं एंथर को, then only we just find out कि एक एंथर में देयर आर फोर साइड्स, दैट इज टेट्रागोनल होता है। यहाँ पर देयर आर फोर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, टू इन ईच लोब। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर क्या है, अल्टीमेटली हम पॉलन ग्रेन के नेम हमारा माइक्रोस्पोर कहलाएगा। वो स्ट्रक्चर जहां पर पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा, जो कि फोर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम द पॉलन सैक। जब इसमें पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो आप उसको एंथर सैक भी कह सकते हो। इसको आप जब पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो यू कॉल देम एज अ पॉलन सैक। They extend longitudinally all through the length of the anther and packed with the pollen grains। अब pollen grains कैसे बनेंगे, कौन सा सेल डिवीजन होगा, यहाँ पर meiosis होगा। The cell division will be meiosis, reductional cell division होगा। So first we have to find out कि ये जो हमारे pollen sac या anther sac है जहाँ पे pollen grains बन रहे हैं, यहाँ पर इसको कौन कौन सी जो walls है वो सराउंड कर रही है और इन walls का फंक्शन क्या है। The outermost wall is always the epidermis। उसकी जो नेक्स्ट वॉल होगी वो एंडोथीसियम कहलाता है। जो थर्ड वॉल होगी इसकी वो टेप्टम एक मिडिल लेयर कहलाता है। कुछ फ्यू लेयर्स आर देयर इन द मिडिल लेयर और द फोर्थ वॉल जो होगी वो टेप्टम कहलाता है। तो फोर वॉल्स जो हैं वो ये जो बीच वाला पोर्शन इन्होंने इस डायग्राम में क्या नेम दिया हुआ है, स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज जो हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहलाएंगे जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सो इफ आई विल जस्ट सी द स्ट्रक्चर हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। Transverse section of anther has two anther lobes and each anther lobe has a two thecas. So four thecas are there. These thecas are surrounded by four walls.
जो फर्स्ट 3 वॉल्स होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एज वेल एज द मिडिल लेयर, ये तीनों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और जो टैप्टम होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको? जब पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं तो स्पोरोजीनस टिश्यूज को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको हम और दूसरी तरह से दूसरे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। So the wall layer from periphery to center means बाहर से अंदर की तरफ, ये वही डायग्राम है, दूसरा डायग्राम लिया गया है। The first one is epidermis, second one is endothelium, third is the middle layer. There are few layers of the middle layer and then there are the tapetum. अभी हमने वहां पे क्या वर्ड लिया था? स्पोरोजीनस टिश्यूज, और यहाँ पर हमने वर्ड क्या लिया है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी? यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर जब ये मैच्योर होने लगता है और जब इसे पॉलन ग्रेन्स बनने लगते हैं तो टैप्टम इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और बाकी की बाहर की लेयर्स जो होती है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एंड दैट इज गिवन हियर। A single layer of epidermis between which becomes stretched and the shrivel of the maturity, क्योंकि जब ये डाइसेंस होगा इसका तो ये फिर श्रिवल कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तभी ये ग्रूव से यहाँ पे स्प्लिट करता है। यहाँ पर a single layer of endothelium, the cells of endothelium has fibrous thickening, तो प्रोटेक्शन दे रहे हैं दोनों लेयर्स। one or two three middle layers they are generally disintegrate in the mature anther, ये भी इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो फिर ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, डेड हो जाता है। द सिंगल लेयर ऑफ टैप्टम, द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट और बाइन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट। इसमें सेल्स में न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मैनी भी हो सकते हैं। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये जो है टैप्टम ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? स्पोरोजीनस टिश्यूज को। द सेल्स ऑफ द प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यूज which further give rise to the diploid sporogenous tissues। तो इसके बीच में यहाँ पे मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से later these sporogenous tissues will be known as the microspore mother cell, और there is a vascular strand here connective होता है यहाँ पर, जिससे इसको phloem and xylem के through food provide होता है। Here what is the process of the microsporogenesis? Genesis का मतलब होता है कुछ ना कुछ formation होना। यहाँ पर एक single diagram, all many diagrams are given. I have just shown you कि जो sporogenous tissue है now they started working as a microspore mother cell। यहाँ का जो nucleus है वो diploid है, 2n number of chromosome, जैसे है आपका 20 chromosomes है suppose। यहाँ पर आपका meiosis 1 होगा तो यहाँ पर 2 cells बनेंगे और number of chromosome become 10 and 10, suppose this is the example, right? And then the meiosis 2 होगा, तो meiosis 2 is just a equational division, यहाँ पर reduction नहीं होता, reduction तो यहीं पर होता है meiosis 1 पे। तो 4 cells are formed और इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी हमने पॉलन ग्रेन वर्ड यूज नहीं किया है, इसीलिए कहीं पे पॉलन सैक वर्ड यूज हो रहा है, कहीं पर एंथर सैक वर्ड यूज हो रहा है, कहीं पे माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्ड यूज हो रहा है, कहीं पे स्पोरोजीनस टिश्यूज वर्ड यूज हो रहा है। सो यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि किस लेवल पे हमारा कौन सा वर्ड यूज करना है। जब मैच्योर हो रहा है, जब पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, टेट्राड मतलब एक सेल, एक मदर सेल वो 4 pollen grains या microspore बनाएगा, and every sporogenous tissue can act as a mother cell। every sporogenous cell, टिश्यू का हर सेल एक मदर सेल, पोटेंशियल मदर सेल होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि a large amount of abundance में हमारे पास pollen grains बनता है। So as the anther develops, the cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form the microspore tetrad। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? तो ploidy of the cells of tetrad, इसकी ploidy क्या होगी? ये haploid है, number of chromosome become half। और अगर sporogenous tissues की ploidy क्या होगी? वो diploid है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की क्या होगी? डिप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर डायट की क्या होगी? हैप्लॉइड है। सो क्योंकि मियोसिस 1 के बाद रिडक्शन डिवीजन हो जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, मतलब हर सेल
स्पोरोजेनस टिश्यू का एक पोटेंशियल मदर सेल है जिसमें कि मियोसिस हो सकता है और वो एक pollen grains 4 pollen grains को originate करेगा. So the process of formation of microspore from the pollen grain mother cell, अब यहाँ pollen mother cell आ गया, यहाँ पे microspore mother cell था, तो दोनों microspore and pollen ये हमारा वर्ड more or less सेम है. हम pollen थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, बट ये कहलाता है PMC through the meiosis and the formation of this is known as the माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस एंड द मदर सेल्स आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल और pollen mother cell. The process is known as the microsporogenesis. The microspores, as they are formed, they are arranged in a cluster of 4 and that is known as the tetrad. 3D में 3 आगे से दिखते हैं, एक बैक से दिखता है. They are known as the tetrad. As the anther matures and dehydrate, dehiscence में जब इसको split होना होता है, pollination होना होता है, तो microspores dissociate from each other, ये अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये सिंगल माइक्रोस्पोर के फॉर्म में यहाँ से इनका डाइसेंस हो जाता है. So this is the microsporogenesis. कहाँ पर हो रहा है? एंथर में. एंथर के 2 lobes हैं, 4 एंथर सैक्स हैं या pollen सैक्स हैं और इसमें 3 लेयर्स आपकी प्रोटेक्टिव है. 1 लेयर इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है. इनसाइड द सेल आर द स्पोरोजिनस टिश्यूज, ये मदर सेल्स हैं. मदर सेल्स में मियोसिस होगा, देन ओनली इट विल बी द मियोसिस 2 के रिजल्ट में that will be tetrad and they are separated and form these the pollen grains. The same there, the type of the cell division is shown here and the microsporogenesis मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन. अभी हमने pollen grain वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने माइक्रोस्पोर वर्ड यूज किया. This is the diagram which is given in your NCERT book. और ये डायग्राम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. डायग्राम आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ड्यूरिंग द डेसेंस ये ग्रूव्स जो होते हैं यहाँ से स्प्लिट करते हैं और pollen grains यहाँ से ड्यूरिंग द विंड पॉलिनेशन या जब भी इसको पॉलिनेट करना होता है यहाँ से निकल जाते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम. यहाँ पे हेडिंग सब दिए हुए हैं. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ pollen grains. Pollen grains का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन है आपके NCERT में. Pollen grains viability, then pollen grains as allergen, pollen grains food supplements, then what are the layers which are present on the pollen grains. So pollen grain represent the male gametophyte. ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि pollen grain is a male gametophyte और structure of the male gametophyte आपको स्टार्ट करना है. So they represent a male. हम इधर का माइक्रोस्पोर पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड पढ़ रहे थे. Now they will be known as the pollen grain. If we touch to open the anther, anther को अगर हम टच करते हैं तो येलो कलर का पाउडर मिलता है. ये एक पिक्चर मैंने डाला हुआ है, ये pollen grains है. And you really amaze the variety of the architecture, size and shape and color and design. ये एक पिक्चर लिया हुआ है, ये तो आपका NCERT की पिक्चर है. ये एक और पिक्चर लिया हुआ है. This is the shape of the pollen grains because it has a exine and the intine. But when you see 3D पिक्चर पे अगर आप इसको देखते हैं तो आपको इस तरह का pollen grains यहाँ पे शो करते हैं. Pollen grain represents the male gametophyte, generally spherical in shape and 25 to 50 micrometer in diameters. कई बार ये वाला जो इसका डायमीटर जो डायमेंशन है ये आपको 1 मार्कर्स में पूछते हैं, इसीलिए इसको मैंने अलग से रखा हुआ है. 25 to 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर पर होता है. इट इज मेड अप ऑफ द 2 वॉल्स, जहाँ पे एक्साइन है, सेकेंड वॉल इज इंटाइन. इंटाइन के अंदर वाली जो वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो अंदर है वो साइटोप्लाज्म है. सो जैसे सब सेल्स में होता है, देयर आर 2 वॉल्स, यहाँ पे 2 वॉल्स है, एक्साइन इंटाइन. उसके अंदर हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म. बट यहाँ का जो एक्साइन है, it is made up of the hardest substance which we call it as a sporopollenin. और इस एक्साइन पर जहां पर स्पोरोपोलिनिन मिसिंग है, जहां पर नहीं है प्रेजेंट एक्साइन पर, जहां पर मिसिंग है वो पोर्शन कहलाता है जर्म पोर्स. तो जर्म पोर्स कुछ ऐसा अलग स्ट्रक्चर नहीं है पोलन ग्रेन्स का. ये जहां पर स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो मिसिंग होता है, एब्सेंट होता है,
वो स्ट्रक्चर होता है जर्मपोर। जर्मपोर से ही इंटाइन जो होती है वो इमर्ज आउट होती है एज अ पॉलन ट्यूब। सेकेंड लेयर इट इज इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज पेक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज द इंटाइन इज मेड अप ऑफ। कॉन्टिन्यूअस लेयर है, कहीं पे कुछ मिसिंग नहीं है, पूरी लेयर पे सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है ये। और साइटोप्लाज्म हमारा जो इसके इनर मोस्ट है वो साइटोप्लाज्म है, और ये क्या होता है सराउंडेड कहां पर है, सराउंड करता है दो न्यूक्लियस को। सो समटाइम्स जब रिलीज होता है पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक से तो 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, एंड समटाइम्स जब रिलीज होता है वो 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है। जो ये डायग्राम है इसमें 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज्ड है। One is a generative nucleus, another one is a tube nucleus. So germ pore where in exine में sporopollenin is absent, that is generative nucleus and tube nucleus, intine and exine ये cytoplasm है, innermost layer is cell wall. So mature pollen grains contain two cells, vegetative and generative. अभी हमने पढ़ा था ट्यूब सेल, उधर हमने ट्यूब सेल से भी आपका क्वेश्चन आता है। जनरेटिव सेल तो हमने पढ़ा था, ट्यूब सेल भी है। So tube cell is bigger, has abundant food reserve and large irregular shaped nucleus. The generative cell is small and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped and dense cytoplasm in the nucleus. So you should know that कि जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है। सो यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस तो था ही वहां पर, तो जो हमारा यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस वर्ड यूज हुआ है दैट इज नोन एज द ट्यूब न्यूक्लियस। सो समटाइम्स इट इज रिलीज्ड विद द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, एंड समटाइम्स इट इज रिलीज्ड विद ट्रू मेल। जनरेटिव न्यूक्लियस जो है यहाँ पर वो दो में डिवाइड हो गया, तो ये 3 सेल्ड स्टेज कहलाता है, 3 न्यूक्लियस स्टेज कहलाता है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains is shed in the 2 celled stage। 2 celled stage का मतलब है दो न्यूक्लियस के स्टेज में, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, एंड सम 40% पे 3 सेल्ड स्टेज पर ये रिलीज होता है। ये अनदर डायग्राम है आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए। एक्साइन इंटाइन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेम नेम्स आर देयर, इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। बहुत बार आपका ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से भी क्वेश्चन आता है। इट इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल एंड साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर, और दूसरा सेल आपका कौन सा है, जनरेटिव सेल। पॉलन ट्यूब कहाँ से बनती है, pollen tube comes out from the intine। intine को emerge out होती है as a pollen tube, और ये वहां से निकलती है जहां जर्मपोर है। जर्मपोर मतलब जहां पे स्पोरोपोलिनेट एब्सेंट है, क्योंकि स्पोरोपोलिनेट टफेस्ट मटेरियल है, प्लांट मटेरियल है जो कि एक्साइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और कई बार ये 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है, कई बार 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है। तो जब 3 सेल पे रिलीज होता है तो ट्यूब न्यूक्लियस तो वैसे ही रह जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो 2 मेल गैमीट्स में डिवाइड कर जाता है। तो ये 3 सेल्ड स्टेज है, और यहां पर आपको क्या शो किया हुआ है, ये 2 सेल्ड स्टेज है। सेम जनरेटिव ये 2 में डिवाइड कर गया तो 2 मेल सेल्स बन गए, और ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये 2 सेल्ड स्टेज है और ये 3 सेल्ड स्टेज है। सो ये वाला डायग्राम जो आपका है ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। दिस इज अ pollen grain। pollen grain के बाद इस आपका ये एंटाइन, एक्साइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वैक्यूल्स एंड द न्यूक्लियस ए सिंगल दिखाया हुआ है। इस सिमेट्रिकल स्पिंडल्स बनते हैं, ये वेजिटेटिव, और इसके साइटोप्लाज्म में जनरेटिव। ये 2 सेल्ड स्टेज का आपका स्ट्रक्चर है जो कि 5 मार्क्स में आपको ड्रॉ करना होता है। तो कई बार आपसे पूछते हैं यू स्टार्ट फ्रॉम द pollen grain, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा डायग्राम। समटाइम्स आप टेट्राड से स्टार्ट करोगे, तो टेट्राड दिखाते हुए आप 4 सेल्स को दिखाते हुए आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर। The outer layer of the pollen is up. That's all. Microsporogenesis is finished now. माइक्रोस्पोर और द pollen grains वहां पे बन चुके हैं। There are the extra questions जो कि कंटेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, and extra questions which are asked. First, they have just given you about the sporopollenin.
that it can withstand high temperature, strong acid and alkali. No enzyme can degrade sporopollenin. Well preserved as a fossil because of the presence of sporopollenin. Large number of species can be stored in the liquid nitrogen, and they can stored and used as a pollen bank in the crop breeding program. तो because of the sporopollenin, 2 marks में आपसे पूछते हैं कि sporopollenin का क्या advantage है और ये इसको pollen bank में रखने के लिए या इसको withstand करने के लिए जो environmental factors होते हैं कैसे helpful होता है. They all are the pictures. ये pollen grains की pictures है. 3D structures. Pollen banks, ये भी आपका 1 या 2 marks का question है. Pollen grains have the large number of species. Pollen grains is stored in the liquid nitrogen. They are stored in the pollen bank and they are used for the crop breeding program. तो अगर पूछते हैं आपसे कि pollen bank का क्या advantage है और कैसे pollen को store किया जाता है, तो these are the 2 points. ये वाइबिलिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम तक ये जिंदा रहता है, कितने टाइम तक लिविंग है. तो वंस पॉलन्स आर शेड, मतलब डाइसेंस हो गया, पॉलन्स आर शेड, दे लैंड ऑन द स्टिग्मा. पॉलिनेशन पे ये स्टिग्मा पर जब शेडिंग हो जाती है, दे लूज द वाइबिलिटी इफ दे डोंट ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन. अगर पॉलन ट्यूब जनरेट नहीं होती है तो फिर स्टिग्मा पे ये डेड हो जाते हैं. नॉर्मली ये होता है. The period at which the pollen grains revival is highly variable and some extent they are prevailing the temperature and humidity. दो चीजों पे डिपेंड करता है. ये क्वेश्चन है आपका 1 मार्क का और MCQs में भी आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे वाइबिलिटी डिपेंड करती है. इस पे ये आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है. In the some of the cereals like rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of release. मतलब स्टिग्मा पे अगर 30 मिनट तक होता है, अगर उसमें जर्मिनेशन पॉलन ट्यूब बन जाती है तो इट्स ओके, अदरवाइज ये डेड हो जाता है. बट सम मेंबर्स ऑफ द रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली ये वाइबल रहते हैं मैनी मंथ्स तक. मतलब ये डायग्राम इसलिए दिखाया है बिकॉज ड्यूरिंग द पॉलिनेशन दे आर रिसीव्ड एट द स्टिग्मा. तो पॉलन ट्यूब अगर 30 मिनट्स में बन जाती है तो ठीक है, अदरवाइज दे जाए. Pollen grain products में क्या क्या है? They are rich in nutrients. Recent year, their tablets and food supplements are available. Western countries, large number of pollen products are the tablets and syrups, and they increase the performance of athletes and the race horses. So that is about the product. ये 4 मैंने pointers इसलिए डाले हैं because ये 1 या 2 या marks के questions होते हैं और every point is a half mark question. But pollen grains have some disadvantage also. कुछ इसमें problems भी हैं. Many species they causes severe allergies, bronchial asthma, and some people they leading to the chronic species disorder. कुछ monthly लोगों को यहाँ पर month basis पे जो pollen release होते हैं उसमें उनको bronchitis and the asthma भी हो जाता है. Parthenium or the carrot grass has come to India as a contaminant and imported wheat that causes a pollen allergy. तो बहुत सारे pollen grains होते हैं, depend on the allergen कि किसको किसको suit नहीं करता. So I hope you understand that. If you like the video and the description, the methodology I have described that, you please like and subscribe the video. And the summary is given here. Okay, how the microsporogenesis is taking place, what is the structure of the stamens and all. But by next video, I will take the second subtopic of this, and that will be the pistil, sporangium, ovule, and the embryo sac. Thank you for watching.